everyone. I am Bharti Sharma, your spoken English educator, and I welcome you all in this new and fun-loving class of mine in which we are going to discuss another important topic that will be based on, of course, spoken English, right? Now, what is the topic that I'm talking about, और उसका role speaking में कैसे होगा? So, the topic that we are going to cover in this class is 10 ways to say thank you. तो आज मैं आपको बताऊंगी 10 और अलग तरीके थैंक यू कहने के. इंस्टेड ऑफ ऑलवेज सेइंग थैंक यू टू द पर्सन, आप उसके अलावा और कौन से फ्रेजेस हैं जिनको यूज कर सकते हो. ऐसे मैं आपको टोटल 10 तरीके बताने वाली हूँ. And of course, this is going to be very helpful when it comes for what? Spoken English, right? आपकी इससे इंग्लिश कैसे इंप्रूव होगी अब आप ये सोच रहे होंगे. See, आप हर जगह एक ही चीज हर जगह यूज कर रहे हो, तो वो क्या शो करता है? कभी आपने सोचा इस बारे में? That shows lack of knowledge. बचपन में जब आप बहुत छोटे होते हो तो आपको सिखाया जाता है कि अगर आप आपकी कोई हेल्प करता है तो आप क्या बोलते हो उसको? थैंक यू. तो क्या ये सिखाया जाता है कि किस तरीके की हेल्प के लिए और कैसे थैंक यू बोलते हैं? ये नहीं सिखाते हैं. देयर इज जस्ट 2 words दैट यू स्पीक एंड दैट्स इट, राइट? सो आप बोल सकते हो थैंक यू, बट if you want to show more, that you have knowledge regarding it, then it will impact your personality as well, and that's why it becomes naturally important that you should know other ways to say thank you, right? So for this class I will be telling you what are the 10 other ways that you can say thank you to the other person. Let's get started with the class, and this is going to be one of the most interesting class, so please pay attention towards it. Let's get started without wasting any time. All right students, so the very first thing क्या होगा? पहला फ्रेज जिसको हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट फ्रेज इज thanks a lot. Now you must be thinking, ma'am, what's the difference between thank you and thanks a lot? हम बोलते हैं, बहुत बार बोलते हैं, very good. अगर आप thank you के अलावा thanks a lot भी बोलते हो, right? That's absolutely fine. But अगर आपको नहीं पता, if you are one among them जिनको नहीं पता इसके regarding that, this is going to be very new. Now where you can use this phrase, let's learn this as well. So this phrase is a more casual way to say thank you very much. ये phrase कैसा है? ये बहुत कैजुअल वे है क्या कहने के लिए. जब आप बोलना चाहते हो थैंक यू वेरी मच, उसकी जगह आप बोल सकते हो थैंक्स अ लॉट और थैंक्स अ टन. ठीक है, आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो जब आप थैंक यू वेरी मच बहुत कैजुअली बोलना चाह रहे हो. ठीक है, it's appropriate for situations where you want to express your gratitude in a friendly or informal way. ये कहाँ पर हम ये appropriate कहाँ के लिए होता है? ऐसी situations के लिए जहाँ पर आप express करना चाहते हो अपना gratitude. किस तरीके से? एक फ्रेंडली मैनर में, या फिर कह सकते हो एक इनफॉर्मल मैनर में. इनफॉर्मल मैनर और फॉर्मल मैनर का डिफरेंस मैं आपको समझा दूं. इनफॉर्मल मैनर वो चीज हो गई जहां आप आप अपने फ्रेंड्स को या मे बी कलीग्स, नॉट कलीग्स एक्चुअली, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या कजन्स या इस तरीके के कोई सिचुएशन में हो और आप कह रहे हो क्लासमेट्स हो गए, सो दैट्स एन इनफॉर्मल मैनर. बट व्हेन इट कम्स टू अ फॉर्मल मैनर, if you are saying that to your boss, to your colleagues, or something more professionally to other person that you don't know, then that will be considered as a formal manner. Clear? So हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं informal manner की. तो जब आप अपना gratitude show करना चाहते हो एक friendly manner में और एक informal manner में, तो आप कह सकते हो thanks a lot, and that's a very first phrase that you just learned. Clear है? तो चलिए जानते हैं हमारा second phrase thank you कहने के लिए. Okay, here you go with the second one. Now what's the second one? I appreciate it. Now क्या ये भी एक तरीका है thank you कहने का? बिल्कुल है. I appreciate it. Now ये आप कब कह सकते हो इसे भी जानते हैं. This phrase is a way to express your appreciation for someone's help or kindness. ठीक है? It can be used in a variety of situations, from receiving a gift
टू गेटिंग हेल्प विद अ टास्क। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है कि ये जो फ्रेज है, ये फ्रेज को हम यूज कर सकते हैं इस तरीके से जब हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं अप्रिसिएशन का। जैसे किसी ने हमारी कोई हेल्प करी या किसी ने हम पर कुछ काइंडनेस दिखाई, काइंड ऑफ यू कैन से दया दिखाई एक तरीके से, या थोड़ा हम पे तरस खा लिया काइंड ऑफ यू कैन से, या किसी ने हमारी छोटी मोटी भी कोई हेल्प कर दी, तो आप बोल सकते हो दैट आई अप्रिशिएटेड दैट यू अंडरस्टूड माई सिचुएशंस, इस तरीके से। और ये आई अप्रिशिएटेड का मतलब क्या हुआ, एक तरीका ही है ये थैंक यू कहने का। जैसे लेट मी गिव यू अ सिचुएशन, इफ आई से आपकी सिचुएशन इस टाइम थोड़ी सही नहीं है, फाइनेंशियली में भी आप सही नहीं हो, एंड अब अपने फ्रेंड से जो है यू कैन से आप उससे उधार ले रहे हो, ठीक है, पैसे ले रहे हो आप, तो आप क्या बोल सकते हो। और जब आपने एक पॉइंट आया, जब आपके पास पैसे आ गए, आपने पैसे वो वापस किए, नाउ यू आर सेइंग थैंक यू टू द पर्सन बाय सेइंग व्हाट, बाय सेइंग आई अप्रिशिएट इट। एंड व्हाट डू यू मीन बाय दीज वर्ड्स, यू मीन टू से, आप ये आई अप्रिशिएटेड तब कहते हो, आपके कहने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि मैं इस चीज को अप्रिशिएट करता हूं कि तुमने मेरी वो सिचुएशन को समझा, है ना, तुमने मेरी उस सिचुएशन को समझा और तुमने मेरी उस टाइम पर हेल्प करी जिस टाइम पर मे बी बाकी लोगों ने मना कर दिया हो, राइट। सो आई अप्रिशिएटेड दैट यू हैव अंडरस्टूड माय सिचुएशन and you are indirectly saying thank you to the person. Clear? So this is a way, this is a second way to say thank you. I hope you're getting my point. And हम इसको काफी अलग, एक एग्जाम्पल था, आप इसको और भी काफी तरीकों से यूज कर सकते हो, और भी काफी सारे सिचुएशंस हैं जहां आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे आपको किसी ने गिफ्ट दिया तो आप बोल सकते हो, एक गिफ्ट देने से लेकर आपकी किसी एक टास्क में किसी ने हेल्प करी वहां तक, इन सारी सिचुएशंस में जितनी भी इस तरह के बीच में सिचुएशंस आ सकती है आप इमेजिन कर सकते हो, इन सारी सिचुएशंस में बोल सकते हैं आई अप्रिशिएट इट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ थर्ड वे टू से थैंक यू इज व्हाट, इज मेनी थैंक्स। हम कई बार ये भी बोलते हैं मेनी थैंक्स, मेनी थैंक्स। अब ये कहाँ बोलते हैं, चलिए इसको भी जान लेते हैं। इट इज अ स्लाइटली मोर फॉर्मल वे, ये क्या है, थोड़ा सा ये फॉर्मल वे है टू से थैंक यू। ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया था इनफॉर्मल और फॉर्मल का डिफरेंस, वेरी गुड। तो जब हम बात करते हैं ना फॉर्मल मैनर की, तो हम बोल सकते हैं मेनी थैंक्स। ठीक है, इट्स अप्रोप्रिएट फॉर सिचुएशंस, ये अप्रोप्रिएट है उन सिचुएशंस के लिए वेयर यू वांट टू शो रिस्पेक्ट, जहां पर आप क्या दिखाना चाहते हो, रिस्पेक्ट दिखाना चाहते हो और ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहते हो, सच एज इन अ बिजनेस सेटिंग्स, जैसे कि कुछ बिजनेस सेटिंग्स में, तो आप बोल सकते हो मेनी थैंक्स। मान लीजिए अगर आप आपकी कोई मीटिंग है बाहर, कोई प्रोफेशनल मीटिंग है, ठीक है, आप अपने बिजनेस बॉस के साथ आपका कुछ चल रहा है, या किसी मीटिंग के लिए आप बाहर गए हो, कोई आपसे बड़े हैं, तो थोड़ा आप रिस्पेक्ट और थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड अगर आप दिखाना चाहते हो तो आप बोल सकते हो मेनी थैंक्स। ठीक है, बहुत प्यार से, बहुत हम्बली आप बोल सकते हो मेनी थैंक्स। ठीक है, तो ये मेनी थैंक्स हम कहाँ यूज करते हैं, फॉर्मल मैनर्स में। इनफॉर्मल में हम ज्यादातर इसको यूज नहीं करते हैं, ये प्रोफेशनलिज्म की जब बात करते हैं तो हम यूज करते हैं मेनी थैंक्स। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सीख लेते हैं हमारा नेक्स्ट। All right students, now fourth up that we are having is thank you kindly. थैंक यू काइंडली। नाउ ये भी आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा, आई एम श्योर ये आप सबने नहीं सुना होगा, मैं आपको बता देती हूँ। थैंक यू काइंडली हम इस तरीके से भी बोलते हैं। अब ये हम बोलते कहाँ हैं, ये बोलते हैं दिस फ्रेज इज अ पोलाइट वे। ये क्या है, ये बहुत पोलाइट वे होता है ये कहने के लिए, क्या, थैंक यू कहने के लिए बहुत ही पोलाइट सा तरीका है। इट्स अप्रोप्रिएट फॉर सिचुएशंस, ये अप्रोप्रिएट है उन सिचुएशंस के लिए जहां पर अगेन आप रिस्पेक्ट और ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहते हो। लेकिन व्हाट्स द डिफरेंस, मैंने आपको पहले भी यही समझाया था, अभी इससे पहले भी एक जगह मैंने आपको बताया था रिस्पेक्ट और ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहते हो तो आप वो यूज कर सकते हो मेनी थैंक्स। लेकिन अब अगर मैं यहाँ बात कर रही हूँ, मैं सेम चीज बोल रही हूँ कि जब आप रिस्पेक्ट और ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो थैंक यू काइंडली। बट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बोथ द थिंग्स, यहाँ पर ये डिफरेंस आ जाता है, बट when you don't want to be overly formal, जैसे इसका मतलब क्या हुआ, कई जगहों पर हम क्या करते हैं, प्रोफेशनलिज्म में ना एक बटरिंग नाम की चीज होती है जो बहुत लोग करते हैं। ठीक है, तो आप वो बटरिंग भी नहीं दिखाना चाहते हो और आप एक प्रोफेशनली, मतलब एक तरीका होता है कि जिसे आप मेंटेन कर रहे हो, वो चीज को कर रहे हो, तो आप यूज कर सकते हो थैंक यू काइंडली।
ठीक है। तो ये आप रिस्पेक्ट भी दिखा दिया आपने, ग्रेटिट्यूड भी दिखा दिया अपना, और बहुत ज्यादा ओवर भी नहीं लगा, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। आई होप नाउ यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन बोथ द थिंग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ here you go with the fifth one. You're a lifesaver. Thank you. You're a lifesaver. Now, what does that means? Let's understand this as well. You're a lifesaver. Thank you. इसका हम यूज कर सकते हैं कहाँ? This phrase is a way to express your gratitude in a dramatic or a playful way. It's appropriate for situations where someone has helped you in a significant way. कहने का क्या मतलब है? जैसे अगर आप उन पर्सन में से हो या इन इंडिविजुअल्स में से हो जो हर चीज को थोड़ा सा ज्यादा ड्रामेटिकली बताने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब ड्रामा मतलब थोड़ा नेगेटिव वे नहीं है ये, इसका मतलब ये है कुछ लोग अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करना जानते हैं, और उन कुछ लोग एक्सप्रेस करने में बहुत माहिर होते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू चूजिंग अ वर्ड दे लैक ओवर देयर। ठीक है, जब बात आती है कि कुछ सही वर्ड्स को यूज करना है तो वो नहीं जान पाते। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो कि जब आप उनमें से हो कि आप एक्सप्रेस करना चाहते हो पर आपको वर्ड्स नहीं मिल रहे, तो दिस वन इज फॉर यू। ठीक है, सो ये थोड़ा सा एक ड्रामेटिक वे है, एक प्लेफुल तरीका है, मतलब आप वर्ड्स के साथ थोड़ा खेल सकते हो और आप बोल सकते हो यू आर अ लाइफ सेवर, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो एक तरीका हो गया कि आप जेन्युइनली दिल से कह रहे हो कि भाई तुम नहीं होते, तुमने मेरी हेल्प नहीं की होती इस चीज में, तो मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाला था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ड्रामेटिकली लगता है, साउंड करता है, बट दैट मीन्स यू आर मे बी यू ओवर एक्सप्रेसिंग टू समवन, यू आर अ पर्सन जो एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो आप यूज कर सकते हो। ये अप्रोप्रिएट होता है उन सिचुएशंस के लिए जहां पर किसी ने आपकी हेल्प करी है किसी ना किसी बहुत बड़े तरीके से। ठीक है, तो यू कैन से यू आर अ लाइफ सेवर, थैंक यू वेरी मच। सी, डजंट इट साउंड लाइक वेरी इंटरेस्टिंग? इट इज राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सीखते हैं हमारा सिक्स्थ वे। ऑल राइट, नाउ है यू गो विद द सिक्स्थ वन। अब सिक्स्थ तरीका क्या है? थैंक्स अ मिलियन। ये बहुत कॉमन है, आई थिंक आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो वेल एंड गुड फॉर यू, क्योंकि आपने कुछ नया सीखा है। ठीक है, थैंक्स अ मिलियन, ये भी एक तरीका होता है थैंक यू कहने के लिए। ये कहाँ यूज कर सकते हैं? दिस इज अ वे टू एक्सप्रेस एक्सट्रीम ग्रैटिट्यूड और एंथुजियाज्म। इट्स अप्रोप्रिएट फॉर सिचुएशंस वेयर यू आर पर्टिकुलरली ग्रेटफुल और एक्साइटेड अबाउट समथिंग। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक तरीका है जब आप एक्सट्रीमली ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो या बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक फील कर रहे हो। एंथुजियास्टिक मतलब कि बहुत उत्साह भरा हुआ है आपके अंदर, तो आप दिखाना चाहते हो। आप मान लीजिए आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट अभी रिसीव की है, जैसे आपने नोटिस किया होगा जो एक्टर्स होते हैं उनको अगर बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल जाए फॉर एग्जांपल, तो कितनी बड़ी अचीवमेंट है। अब वो गए हैं स्टेज पर, सो दे कैन डेफिनेटली से दिस, थैंक्स अ मिलियन टू माय लवली ऑडियंस, टू गॉड, टू पेरेंट्स, टू माय फ्रेंड्स हु सपोर्टेड मी व्हेन आई नीडेड देम द मोस्ट। काइंड ऑफ थैंक यू स्पीच यू कैन से। ठीक है, सो वो उस टाइम पर क्या कर रहे हैं? वो बहुत एक्सट्रीमली ग्रैटिट्यूड को फील कर रहे हैं, एंथुजियास्टिक हैं वो उस टाइम पर, तो वो ये डेफिनेटली बोल रहे हैं। ठीक है, ये अप्रोप्रिएट होता है उन सिचुएशंस के लिए जहां पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील कर रहे हो, थैंकफुल फील कर रहे हो कि अगर ये लोग मेरी लाइफ में नहीं होते, इन लोगों ने मेरे को सपोर्ट नहीं किया होता इस चीज के लिए, तो मैं ऐसा कर रहा होता या वैसा कर रहा होता। तो अब ग्रेटफुल फील कर रहा हो, बहुत अच्छा फील कर रहे हो, या फिर आप बहुत किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, तो आप बोल सकते। ठीक है, थैंक्स अ मिलियन। और जरूरी नहीं है कि अगर आपको बेस्ट एक्टर अवार्ड नहीं मिला तो आप डेफिनेटली यूज नहीं कर सकते। आई जस्ट गिवन यू एग्जांपल कि वो सिचुएशन आपके दिमाग में क्रिएट हो जाए कि आप जेन्युइनली फील करते हो जब कोई चीज की मे बी देयर इज अ गर्ल इन योर लाइफ विच हैज सपोर्टेड यू throughout your life, or maybe there's a boy, or maybe there's your parents, their friends, God sometimes बहुत बड़ा रोल प्ले होता है सिर्फ गॉड की वजह से, लोग सिर्फ गॉड को मानते हैं। तो जिस किसी के लिए भी आप बहुत एक्साइटेड हो किसी भी चीज को लेकर या बहुत ग्रेटफुल फील करते हो, तो आप डेफिनेटली कह सकते हो थैंक्स अ मिलियन। ठीक है, सो आई होप अगेन दिस इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग वन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सीखते हैं सेवेंथ वन। Okay students, now here you go with the seventh one। और seventh one क्या है? I'm grateful for your help। कि मैं बहुत grateful हूं कि तुमने मेरी help करी है। ठीक है, तुमने मेरी मदद की है उस चीज के लिए I'm very grateful।
So, this phrase is a way to express your gratitude in a more formal or serious way. It's appropriate for situations where someone has helped you in a significant way, such as during a difficult time. ठीक है, ये क्या तरीका है? जब आप फॉर्मल तो बोल रहे हो, फॉर्मल मैनर में थैंक्स बोलना चाहते हो, बट उससे ज्यादा आप बहुत सीरियसली, दिल से बहुत बहुत सीरियस हो किसी चीज को लेकर, एंड देन यू वांट टू से थैंक यू, देन यू कैन से आई एम ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प। मतलब कहने का मतलब कि आपकी बहुत डिफिकल्ट टाइम में किसी ने आपकी हेल्प करी है, आपके किसी मुश्किल वक्त में किसी ने आपकी मदद करी है, एंड यू आर वेरी थैंकफुल फॉर दैट बाय योर हार्ट, by the core of your heart, and then you want to say thank you to the person, then you can say that I'm grateful for your help, that you helped me when I needed you the most. Clear? So this is again a way to express your thankful nature towards someone. Clear है? चलिए आगे बढ़ते हैं. Now here you go with the eighth one. Eighth में क्या है? My sincerest thanks. मेरा my sincerest thanks. ये कब यूज होता है? This is a general way to express your gratitude in a very formal or serious way. It's appropriate for situations where you want to show deep respect or gratitude, such as in a formal letter or speech. ठीक है? My sincerest thanks. अगेन हम इसको भी तब यूज करते हैं जब हम बात कर रहे हैं फॉर्मल मैनर की और बहुत सीरियस है हम किसी चीज को लेकर, तो हम यूज करते हैं। प्लस ये सिचुएशंस उन सिचुएशंस के लिए बहुत अप्रोप्रिएट है जहां पर आप बहुत ज्यादा किसी के लिए रिस्पेक्ट है, ठीक है, बहुत ज्यादा आप किसी को पर्सन को मानते हो या किसी पर्सन के लिए बहुत ज्यादा दिल में रिस्पेक्ट है, बहुत ग्रैटिट्यूड है, तो आप बोल सकते हो दैट माई सिंसियरेस्ट थैंक्स टू दिस पर्सन। क्लियर है? और ये ज्यादातर हम यूज करते हैं फॉर्मल लेटर्स, जब हम लेटर लिखते हैं ना किसी को कि माई सिंसियरेस्ट थैंक्स टू दिस पर्सन, तो हम यूज कर सकते हैं दिस थिंग, और मे बी स्पीच में हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सो अगेन दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग वे दैट यू शुड नो एंड व्हेन टू यूज इन अ फॉर्मल मैनर, दैट नाउ यू नो दिस थिंग। क्लियर? सो दिस इज योर एट्थ वे टू से माई सिंसियरेस्ट थैंक्स। क्लियर है? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, सीख लेते हैं हमारे लास्ट के दो तरीके और। All right students, now ninth up is your you have my thanks. You have my thanks. Again, this is your next way. It is a way to express your gratitude in a more formal or serious way. It's appropriate for situations where you want to show respect or gratitude, such as in a business meeting. Again, another one when you want to show your thankful nature towards someone, especially in a formal manner, or you can say in a business setting. तो हम यूज करते हैं। ठीक है, एक और प्रोफेशनल थैंक यू मैं आपको दिखा रही हूँ, सिखा रही हूँ, तो प्रोफेशनली आप सीख लीजिए। अगर आप बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो यू हैव माई थैंक्स, यू हैव माई थैंक्स। ठीक है, तो जब किसी बिजनेस मीटिंग में हो आप फिर थैंक यू बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो इंस्टेड ऑफ ऑलवेज सेइंग थैंक यू। वो बहुत बोरिंग लगता है हर टाइम थैंक यू बोलना, तो ये इसीलिए तरीके बताए गए हैं, तो प्लीज डू यूज देम। नेक्स्ट अप दैट वी आर हैविंग इज द 10th एंड द लास्ट वन फॉर दिस क्लास इज I can't thank you enough. I can't thank you enough. Now, where do we use this? This is a way to express extreme gratitude. It's appropriate for situations where someone has helped you in a significant way and you feel that words alone cannot express your gratitude. ठीक है, देखो जब कहीं आप बहुत ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हो और ये दिखाना चाहते हो कि मेरे शब्द कम पड़ रहे हैं तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए, ठीक है, तो आप बोलते हो दैट आई कांट थैंक यू इनफ। ठीक है, ये थैंक यू वर्ड नहीं है इनफ, मेरे पास वर्ड्स कम पड़ रहे हैं, जो तुमने मेरी हेल्प करी है उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद करूं। आपने हिंदी में बहुत बहुत पिक्चरों में, बहुत बॉलीवुड में लोगों को बोलते हुए सुना होगा ये चीज, तो इंग्लिश में भी डू यूज देम, राइट? सो आई कांट थैंक यू इनफ that you are watching this class till the end. This is my way to say thank you to all my audience out there who are watching me. And with this thing, again, I'm telling that I can't thank you enough for watching this class till the end. Do use them. These were the 10 ways to say thank you. I hope you loved them all, and I'm also hoping that from the next time, instead of always saying thank you, you now have again more than 10 ways to say thank you. Clear? So do use them, and with this thing I'm gonna meet you in my next class. Till then, stay connected, be happy, keep learning and keep practicing. Bye bye.